morning, dear children. Today we will do Unit 1, The World of Flowers in English Reader. Hello and a very good morning to all my dear little ones. I hope everyone is fine and ready to start our English work. Today, dear children, in English language, we are going to start our work in the English Reader textbook. This is your Government English Reader textbook for Standard 3rd. Today, we will start our first lesson in this textbook. So, everyone will open their textbooks. Open your textbooks on the first page. Write today's date and classwork. Today is 22/2/2021 and classwork. This is your UNIT Unit 1 and the name of the lesson is The World of Flowers. Dear children, in this lesson we are going to learn about the beautiful flowers. There are many different kinds of flowers that are present in our country and around the world. बहुत सारे ऐसे सुंदर सुंदर फूल हैं. कुछ फूल पहाड़ों पे उगते हैं, कुछ फूल जो होते हैं मैदानों में उगते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बारिश वाले में उगते हैं, कुछ कम बारिश वाले एरिया में उगते हैं. तो ऐसे तरह तरह के बहुत सारे खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं. पूरे दुनिया में भी हैं और हमारे हिंदुस्तान में यानी कि इंडिया में भी हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर एक्टिविटी से स्टार्ट होगा. दिस इज़ योर एक्टिविटी 1. इन दिस a question is there. Write the names of 2 flowers you like. आपको यहाँ पर जो blank दी हुई है, in this blank you have to write the names of 2 flowers that you like the most. आपके मनपसंद जो भी कोई 2 flowers हैं उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं. I have written ROSE rose and LOTUS lotus. I have written the names of my favorite flowers. You can write the names of your favorite flowers. Now second is talk to your friend and find out which flowers he or she likes. अब यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड से पूछना है कि उसको कौन से फ्लावर्स पसंद हैं और सी में आपको लिखना है लिस्ट 5 flowers both you like. And here in the 5 blanks you have to write the names of 5 flowers that you both like. That means it is the choice you also like, it is your favorite flower also, and it is the favorite flower of your friend also. I have written here marigold, jasmine, rose, lily and tulip. Marigold, jasmine, rose, lily and tulip. You can write the names of other flowers like lotus, sunflower, champa, zinnia, dahlia. Any flower you like you can write. Pansy, poppy, कोई भी फ्लावर्स के नाम आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज योर एक्टिविटी 2. नाउ इन दिस एक्टिविटी यू कैन सी हियर द पिक्चर्स ऑफ सम ऑफ द फ्लावर्स आर गिवन हियर. देयर आर 6 flowers in all. The pictures are 6. You have to see the picture, identify and then write their names. Look at the pictures of flowers. Can you see and tell their names? Fill in the details in the table given below. Now here you can see you have to fill the table is given on the next page, but here you will first simply write the names of the flowers in the side. यहाँ पे जितने भी flowers हैं उनके side में आप उनके नाम लिखेंगे. Now you can see here this is your first flower which is your rose. Actually ये पिक्चर में देखने से एकदम रोज जैसा लगता नहीं है, but it is a rose flower. So I have written here ROSE rose. Then second flower is your lotus. This you can easily identify lotus. Third flower is your shoe flower. जो है ये गुड़हल का फूल है जिसको कि हम shoe flower या hibiscus flower भी बोलते हैं. Then the fourth flower is your जैस्मीन. ये फ्लावर जो है कौन सा है, जैस्मीन का फ्लावर है. और उसके बाद यहाँ पर जो 5th फ्लावर है दैट इज़ योर सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी. और 6th वाला फ्लावर जो है दिस इज़ योर चंपा. ये जो 6th वाला फ्लावर है ये चंपा है, ये जैस्मीन है. जैस्मीन जिसको कि हम
आई डोंट रिमेंबर द एक्जैक्टली द नेम ऑफ दिस फ्लावर इन हिंदी, बट दिस इज द वाइट इन कलर और इसकी एकदम स्वीट स्मेल होती है. इट्स रियली ब्यूटीफुल फ्लावर. सो यहाँ पर आपको इस तरीके से सबके नाम लिखने हैं. अब नेक्स्ट पेज पर जो है, ऑन द सेकेंड पेज ऑफ दिस लेसन, यू कैन सी द टेबल इज गिवन हियर. यहाँ पर जो है ये फ्लावर्स का पूरा टेबल दिया हुआ है. नेम ऑफ द फ्लावर्स, वेयर डिड आई सी दीज फ्लावर्स एंड व्हाट डू आई लाइक अबाउट दिस फ्लावर. ये जो पीछे जितने भी फ्लावर्स दिए हुए हैं उनके हमको यहाँ पर क्या लिखना है. सबसे पहले तो नाम लिखना है, उसके बाद ये फ्लावर्स हमने कहाँ देखे थे वो लिखना है. एंड इन द थर्ड वन वी हैव टू राइट व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस फ्लावर्स, मतलब कि हमको ये फ्लावर्स क्यों पसंद हैं. दैट वी हैव टू राइट. नाउ फर्स्ट वन इज द रोज. एज यू नो, रोज इज वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर इन itself and it has lovely colors also. Many different colors are there in the rose flower. Red है, pink है, white है, black, even dark green or the blackish color is there in the rose. Then the orange आता है, yellow आता है, so shaded also, orange and yellow is there. So many different kinds of rose flowers are there which looks very pretty, and the smell of the rose itself is very good. So the first flower is rose. वेयर आई हैव सीन दिस फ्लावर इन माई गार्डन, मेरे गार्डन में ही है. और आपको क्या अच्छा लगता है इसके बारे में. इट्स स्वीट स्मेल, इसकी जो मीठी सी खुशबू होती है वो बहुत पसंद है. नेक्स्ट इज द लोटस फ्लावर. आई हैव सीन दिस इन द पॉन्ड. वी कैन नॉट सी दिस एट होम बिकॉज द लोटस ऑलवेज ग्रोज इन द वाटर. एज यू नो इट वेरी वेल, लोटस हमेशा पानी में ही उगता है, इसलिए हमने लोटस फ्लावर कहाँ पर देखा है, पॉन्ड में देखा है. और इस क्या पसंद आता है, एक तो इसका ब्यूटीफुल कलर एंड द शेप ऑफ द पेटल्स ऑफ द फ्लावर. ये अपने में एक अलग किस्म का ही फ्लावर है. नेक्स्ट इज द शू फ्लावर, जो गुड़हल का फूल है. इन माई स्कूल गार्डन, ये नॉर्मली सबके घरों में भी होता है और गार्डन्स में भी शू फ्लावर काफ़ी दिखाई देते हैं. इसका जो कलर होता है ये भी बहुत सारे कलर्स में होता है. रेड होता है, वाइट होता है, पिंक है, येलो है, पर्पल है, ऐसे ऑरेंज है, ये सभी कलर्स में होता है. तो ये भी बहुत सारे कलर्स में होता है. और इसकी जो पेटल्स होता है, इसका एक स्पेशल शेप होता है जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखता है. इसका कलर एकदम ब्राइट रेड कलर एंड द पेटल्स. और इसमें भी बहुत सारे डिफरेंट शेप के पेटल्स वाले फ्लावर्स, शू फ्लावर्स होते हैं. नेक्स्ट इज योर जैस्मीन. नियर माई हाउस, मेरे घर के पास, क्योंकि ये बेल में होता है. जैस्मिन एक्चुअली जो है एक क्लाइंबर है. इसका वाइट कलर और इसकी बहुत ही खूबसूरत सी मीठी सी सुगंध होती है जैस्मिन में. सनफ्लावर इन द पार्क. सनफ्लावर कहाँ देखा है, पार्क में देखा है. इसका शेप एंड ऑफ द फ्लावर इज एंड इट्स कलर. जो सनफ्लावर का शेप होता है इट्स रियली डिफरेंट एंड इट ऑलवेज लुक्स टूवर्ड्स द सन. इसकी जो स्पेशलिटी होती है सनफ्लावर की, इट ऑलवेज लुक्स टूवर्ड्स द सन. जैसे जैसे सन की डायरेक्शन मूव करती है वैसे वैसे द सनफ्लावर ऑल्सो चेंजेस इट्स डायरेक्शन. सो उसका जो स्पेशलिटी है दैट इज वाई आई लाइक सनफ्लावर. एंड चंपा, आई हैव सीन इट इन माई गार्डन एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल. उसका जो शेप है और जो स्मेल है फ्लावर का वो बहुत ही खूबसूरत है. चंपा का फ्लावर भी आप अगर देखिए, इफ़ यू सी दिस चंपा फ्लावर दैट इज शोन हियर, तो दिस इज ऑल्सो रियली ब्यूटीफुल. ये भी ऐसे जैसे एक प्योर वाइट में आता है चंपा फ्लावर, देन लिटिल बिट ऑफ येलोइश टिंच इन दिस लाइक दिस, एंड एक रेड कलर का चंपा भी आता है जो बहुत ही खूबसूरत होता है देखने में. इट्स रियली ब्यूटीफुल दैट रेड कलर चंपा. Now we move on to our next story. There's a small story which is the activity 3. Now listen to your teacher as she reads the story. Read it silently and see, read aloud some parts as directed by your teacher. Now this is the activity 3 for this lesson, which is the story of the garden. It is a lovely story of the gardens where you can see the flowers talking within themselves. Flowers and the small birds, आपस में सब क्या करते हैं, बातें करते हैं about the school children. So now we will start the story of the magic garden. Dear children, we will start the lesson or the story, The Magic Garden. As I told you earlier that this is the story about a garden in which the different flowers and the small birds are talking with each other. What they are talking, that we will read now. First, we will read the lesson and everybody will also read from their textbooks. The Magic Garden was in a school playground. So where was the magic garden? The magic garden was there in the school playground. Now why it is named as the magic garden, that we will come to know when we will read the entire lesson.
इट वॉज वेरी प्रिटी। कैसा था गार्डन? गार्डन बहुत ही ब्यूटिफुल, प्रिटी मतलब खूबसूरत था। सनफ्लावर एंड रोजेस स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल्स। तो जो स्कूल की प्लेग्राउंड थे, प्लेग्राउंड की वॉल्स के साथ कौन कौन से फ्लावर्स थे? रोजेस एंड द सनफ्लावर्स वेयर देयर नियर द वॉल ऑफ द प्लेग्राउंड। देयर वेर ऑल्सो मेरीगोल्ड्स, पॉपीज एंड पेंजीज। और कौन कौन से फ्लावर्स वहाँ पे थे? गार्डन के अंदर थे मेरीगोल्ड यानी कि गेंदा, पॉपी और पेंजी के भी फ्लावर्स थे वहाँ पर। The sunshine fell on this garden more than any other garden. अब जो धूप थी वो सूरज की सबसे ज़्यादा इस मैजिक गार्डन पे ही पड़ती थी और किसी गार्डन के कंपैरिजन में। एंड द फ्लावर्स डांस्ड एंड सैंग हैप्पीली। और क्योंकि धूप बहुत अच्छे से पड़ती थी इस गार्डन में सारे गार्डन के कंपैरिजन में, तो यहाँ जो फ्लावर्स थे वो बहुत अच्छे से उगते भी थे और इसलिए वो बहुत हैप्पी रहते थे और हमेशा गाना गा के डांस करते थे। डियर चिल्ड्रन, जब कोई भी पेड़ उगता है तो उसको पानी के साथ साथ धूप की भी उतनी ही ज़रूरत होती है। अगर पानी ही मिलता रहेगा और धूप नहीं मिलेगी तो वो पेड़ नहीं हो पाएगा। इसलिए धूप भी उतनी ही चाहिए जितना पानी और उसको दूसरे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सनशाइन इस मैजिक गार्डन में होती थी, इस वजह से यहाँ के सारे फ्लावर्स अच्छे से ब्लूम करते थे और इसलिए हमेशा हैप्पीली वो गाना गाते थे और डांस करते थे। They said to one another, we have hundreds of little gardeners. और वो आपस में जो फ्लावर्स थे वो क्या बात करते थे कि हमारे पास बहुत सारे hundreds of little gardeners. Who are the gardeners, dear children? The gardeners is the person who looks after the garden. जो गार्डन की देखभाल करता है, पौधों की देखभाल करता है, उसको हम गार्डनर यानी कि माली बोलते हैं। तो फ्लावर्स आपस में क्या बात कर रहे थे? फ्लावर्स आपस में ये बात कर रहे थे कि हमारे तो बहुत सारे छोटे छोटे गार्डनर्स हैं। They were talking about the children from the school. और फ्लावर्स कौन से गार्डनर्स की बात कर रहे थे? फ्लावर्स उन बच्चों की बात कर रहे थे जो स्कूल में पढ़ने आते थे। So they were telling that there were hundreds of gardeners, little gardeners. The sunshine fell, sorry, one sunny morning, the flowers were talking to the birds. अब एक दिन जो थे फ्लावर्स जो थे वो जो थे बर्ड्स के साथ बात कर रहे थे। I love all the children, but I love the dear little ones most of all, said a poppy. The flowers were talking to the birds, and what are the flowers talking? That all the birds, फ्लावर्स बर्ड्स को क्या बोल रहे थे कि हम मेरे को सारे बच्चे पसंद हैं, लेकिन पॉपी जो एक फ्लावर था उसने ऐसा कहा कि मुझे सारे बच्चे तो पसंद हैं लेकिन उनमें से जो लिटिल जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद हैं। Why Poppy liked those little dear ones? Because the reason was that I like that they bring their watering cans and water my thirsty roots. तो पॉपी को क्यों पसंद थे वो? Because all the little ones used to bring their small watering cans and water the thirsty roots. मतलब कि वो पॉपी के पेड़ को छोटे छोटे बच्चे जो थे वो पानी पिलाते थे। watering cans जो होते हैं छोटे छोटे कैंस होते हैं जिससे कि पेड़ों में पौधों में पानी डाला जाता है गार्डन में। तो बच्चे थे वो छोटे छोटे कैंस लेकर आते थे और पॉपी के जड़ों में पानी डालते थे, मतलब पॉपी के पेड़ को वो पानी पिलाते थे। यस सेड द मेरीगोल्ड्स। अब मेरीगोल्ड ने भी कहा हाँ ये बात ठीक है। द चिल्ड्रन आर गुड टू अस टू। तो उसने क्या कहा? सारे बच्चे हमारे साथ भी उतने ही अच्छे हैं जितने आपके साथ हैं। दे डिग द ग्राउंड सो वेल, वी लव द लिटिल चिल्ड्रन, सेड अ टाइनी बर्ड। तो मैरीगोल्ड ने कहा कि हमको भी बच्चे उतने ही पसंद हैं क्योंकि एक तो वो अच्छे से ज़मीन को डिग करते हैं, फिर पेड़ लगाते हैं, उनको देखभाल करते हैं। तो सारे फ्लावर्स जो थे वो बहुत ही हैप्पी थे क्योंकि बच्चे उनकी अच्छी देखभाल करते थे। देन द लिटिल वन ऑफ द टाइनी, मतलब एक छोटी सी बर्ड ने कहा वी लव द लिटिल चिल्ड्रन, दे आर काइंड एंड फीड अस ऑल्सो। तो लिटिल बर्ड ने क्या कहा? वाई दे लाइक द लिटिल बर्ड्स लाइक दोस टाइनी बर्ड्स लाइक द चिल्ड्रन? बिकॉज दे यूज टू फीड द बर्ड्स। मतलब वो छोटे छोटे बच्चे पेड़ों को पानी पिलाने के बाद, पेड़ों की देखभाल करने के बाद जो छोटे छोटे बर्ड्स थे उनको भी वो खाना खिलाते थे।
All the flowers said, "We must work hard to make our dresses very pretty, for the children will be here soon." Now the flowers were getting themselves ready because the children were about to come in the playground. तो सारे फ्लावर्स ने आपस में बात की कि हम लोग को कुछ अच्छे से अपने प्रिटी प्रिटी ड्रेसेस पहन के रेडी रहना चाहिए, जिससे कि बच्चे अभी आएंगे और हमको देखकर बहुत ही खुश हो जाएंगे. जब आप अच्छे से तैयार होते हैं, वेल ड्रेस्ड होते हैं, तो आपको खुद को भी अच्छा लगता है, एंड द पर्सन हु सीज यू ऑल्सो बिकम्स वेरी हैप्पी. तो सेम वे द फ्लावर्स वर ऑल्सो गेटिंग रेडी बिकॉज द चिल्ड्रन वर अबाउट टू कम इन द प्ले ग्राउंड, सो दे वॉन्टेड टू पुट देयर बेस्ट. वो एकदम खूबसूरत से दिखना चाहते थे. The sun said, "I will also help you, for nothing pleases me more than to see the children playing in the golden sunshine." तो अब जो सूरज था, जो सन था, उसने भी फ्लावर्स को क्या कहा, और टाइनी बर्ड्स जब बातें कर रहे थे तो उनको भी ये कहा कि मैं भी आपकी मदद करूँगा, बिकॉज मुझे भी बहुत अच्छा लगता है बच्चे जब हैं वो धूप में खेल रहे होते हैं, उनको देखकर मुझे भी बहुत ही जैसे खुला सा अच्छा सा अगर एटमॉस्फेयर है तो खेलने में भी ज़्यादा मज़ा आता है. तो सन वॉज ऑल्सो प्लीज टू see the little children playing in the sunshine. Then the children came out laughing and singing, and the flowers stopped their songs to listen to them. अब सारे जो flowers थे, because as in the beginning of the lesson we heard that the flowers were डांस एंड सैंग हैप्पीली, मतलब फ्लावर्स बहुत खुश रहते थे इसलिए वो डांस भी करते थे और हैप्पीली गाना भी गाते थे. तो जैसे ही फ्लावर्स ने बच्चों की आवाज़ सुनी प्लेग्राउंड में आते हुए, तो अब मतलब बच्चे खेलते हुए, गाना गाते हुए, हंसते हुए जो थे वो प्लेग्राउंड में आए, वैसे ही फ्लावर्स ने दे स्टॉप्ड देयर सिंगिंग एंड दे वांटेड टू लिसन टू द चिल्ड्रन. सो दे स्टॉप्ड देयर सॉन्ग एंड डांस एंड दे they wanted to see what the children are doing. "Oh, look at the tall sunflower," said one child, and the sunflower lifted up head very proudly. So as the children came in, the first was the children saw one of the child saw the sunflower. As you know, dear children, the flower, the stem of the sunflower is quite tall. तो एक बच्चे ने सनफ्लावर का फूल देखकर कहा, "Oh, just see the tall sunflower." And as the child saw that, see the tall sunflower, the sunflower was so happy to hear that he proudly lifted his head. मतलब उसने जो फूल ने जो है अपना एकदम अच्छे से जो है वो मुंह ऊपर कर लिया, सर ऊपर कर लिया विथ प्राउडली. जब हम हमारी कोई तारीफ़ करता है तो हमें बहुत खुशी होती है, तो हम अपना सर जो है ऊंचा करते हैं ना, वैसे ही सनफ्लावर को भी बहुत खुशी हुई अपनी तारीफ़ सुन के. द सनफ्लावर वेरी हैप्पी टू सी द चिल्ड्रन अप्रिशिएटिंग इट, तो ही जस्ट प्राउडली लिफ्टेड हिज हेड, its head. Another child said, "I love the marigold in its golden dress." The marigold स्माइल्ड हैप्पीली. अब दूसरे बच्चे ने क्या कहा कि मुझे जो है मेरीगोल्ड जो है बहुत पसंद है, और मेरीगोल्ड का जो गोल्डन ड्रेस है वो मुझे बहुत पसंद है. डियर चिल्ड्रन, देयर आर 2 डिफरेंट कलर्स इन द मेरीगोल्ड. एक छोटा मेरीगोल्ड आता है जिसमें मरून एंड येलोइश फ्लावर्स होते हैं, एंड देन द नॉर्मल मेरीगोल्ड दैट वी हैव इज वन इज द डार्क येलो एंड वन इज द लाइट येलो. जो नॉर्मल होते हैं, तो उसका जब डार्क येलो जैसा होता है, इट लुक्स मोर लाइक अ गोल्डन. तो एक बच्चे ने क्या बोला कि मुझे गोल्डन कलर के ड्रेस में ये जो है मेरीगोल्ड बहुत ही पसंद है. एंड मेरीगोल्ड वॉज वेरी हैप्पी टू हियर दैट, एंड द मेरीगोल्ड स्माइल्ड हैप्पीली, मतलब खुशी से जो है मेरीगोल्ड स्टार्टेड स्माइलिंग. Another child said, "I love the marigold in the golden dress." The marigold smiled happily. It was indeed a magic garden because it had fairies too. Now, what was the magic actually? In the garden, there were fairies also. मतलब परियां भी इस गार्डन के अंदर थी, इसलिए सचमुच में ये था वो मैजिक गार्डन था. बिकॉज फ्लावर्स और बर्ड्स आपस में बात करते थे, ब्यूटीफुली ड्रेसअप होते थे बच्चों से, और बच्चों से खुश रहते थे, और बच्चों को खुश करने के लिए वो अच्छे से तैयार होके बच्चों की वेट करते थे. और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि उसमें फेरीज भी थी. They danced and sang sweet songs which only the children could hear. Now these fairies also used to sing and dance, but their song was not heard by the flowers, not by the birds, but only by the little children who used to play there. मतलब फेरीज जो गाना गाती थी और वो खाली बच्चे जो वहाँ खेलते थे उन्हीं को सुनाई देता था, बाकी फ्लावर्स और बर्ड्स को किसी को सुनाई नहीं देता था.
After a while, the fairies came out dancing and talked with the children. अब कुछ समय के बाद वहाँ फेरीज भी आ गई और डांस करने लगी और बच्चों से बातें करने लगी. Their dresses were made of flowers and their wings were made of sunshine. तो अब जो फेरीज थी उनके ड्रेसेस किससे बने हुए थे? जो फेरीज जो होती है वैसे भी यू ऑल नो दैट फेरीज वेयर द ब्यूटिफुल ड्रेसेस. सो these fairies, their dresses were made up of the flowers and their wings were made of the sunshine. Always fairies also have the wing and a wand in their hand. तो वैसे ही ये फेरीज के जो ड्रेसेस थे वो फ्लावर्स में से बने हुए थे एंड द विंग्स ऑफ द फेरीज वर मेड ऑफ सनशाइन. The magic garden was quiet that night. The flowers and the birds were asleep and dreaming of the next day when the children would come again. अब जो थे रात हो गई, शाम हो गई, बच्चे अपने घर चले गए स्कूल से और सारे जो पूरा मैजिक गार्डन था वो कैसा हो गया? एकदम क्वाइट हो गया. राइट को नाइट एट नाइट बिकॉज देयर वाज नोबडी. ऑल द फ्लावर्स हैड द बर्ड्स हैड गॉन टू स्लीप एंड दे वर जस्ट ड्रीमिंग फॉर द नेक्स्ट डे व्हेन द चिल्ड्रन विल कम एंड व्हाट दे विल टॉक अबाउट. द चिल्ड्रन विल टॉक अबाउट देम. So they were so happy that they wanted the next day also the children to come and talk about them. Now this is the story which has been adapted from the story The Fairy Garden. ये एक बुक है जो फेरी गार्डन नाम की, उसके अंदर से एक छोटी सी स्टोरी को अडेप्ट किया गया, लिया गया है, जिसको कि लिखा है बाय मार्गरेटा एच बोल्टन. मतलब इस जो स्टोरी जो पूरी स्टोरी है द फेरी गार्डन की, उसको लिखने वाले हैं मार्गरेट एच बोल्टन जो है, उन्होंने लिखा हुआ है. और इसमें से उस पूरे स्टोरीज में से एक छोटी सी स्टोरी इसमें ली गई है. I hope, dear children, you all have enjoyed this lovely story of the magic garden. Here you can see in this book there are lovely pictures of the magic garden over here also, and one beautiful picture is over here also. As such, the flowers जो है nature ने हमको इतने अच्छे से provide किए हैं कि कोई भी कलर का फ्लावर, I think flowers we find in all different colors. कोई भी कलर ऐसा नहीं होगा जिस कलर का फ्लावर नहीं होगा. तो सारे डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर्स जो है गॉड ने प्रोवाइड भी किए हैं. उनके डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट साइज है, स्मेल है, और सभी फ्लावर्स इतने ब्यूटीफुल होते हैं कि सब हमको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. दिस इज़ अ रियल ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ गॉड टू अस, अ रियल नॉट gift of nature to us, and I think we should preserve this lovely gift also. Now here children, these are the keywords. Keywords का मतलब होता है word meanings. What this certain words in the lesson, I think the meaning should be understood. The first word is pretty, P-R-E-T-T-Y, pretty, which means nice looking or beautiful. The second word is sunshine, which means bright sunlight. Third one is watering cans for watering the plants. And the fourth one is pleasing, which means giving pleasure or enjoyable. These are the four keywords or the word meanings. मतलब इन words के meanings दिए हुए हैं. Now with the explanation part is over, now we will do some of the textual part.